Good morning, students. In today's video, we are going to cover this chapter, that is chapter number 4, process of human adjustment. Okay, so what do you mean by adjustment? So, adjustment is a change in order to correct or improve the relationship. Okay, adjustment skills are important for maintaining peace and harmony in society. According to Ruth Strang, 1949, adjustment is a process and not a state. Adjustment is continuous throughout life. तो व्हाट मीन्स एडजस्टमेंट क्या होता है? ऐसे जैसे हमने इतनी लाइंस पढ़ी कि मतलब कि खुद को चेंज करना, जिससे कि हम रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सके, हम पीस एंड हार्मनी मेंटेन कर सके, ये सब चीजें जो है वो उन सबको एडजस्टमेंट कहते हैं. द वर्ड सजेस्ट हमें सबको पता है एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है. Okay, and the maladjusted individual is one who is rejected by the group because of his non-conformity to the group mores, customs, conventions, etc. Thus, adaptation involves effective adaptation. So हमें effectively करना चाहिए adaptation. Okay, और मतलब बहुत सिंपल भाषा में समझिए तो एडजस्टमेंट इज इक्वल्स टू चेंज. ओके, या ब्रूट स्ट्रैंग का लिख सकते हैं डेफिनेशन, व्हाट ही सेज अबाउट द एडजस्टमेंट. ठीक है, it signifies a harmonious relationship of an individual to his environment which affords him a comfortable life devoid of stress, conflict and frustration. So हमें एडजस्टमेंट हेल्प करती है एक स्ट्रेस फ्री, कॉन्फ्लिक्ट फ्री, फ्रस्ट्रेशन फ्री लाइफ जीने में. सो एडजस्टमेंट, other name of life is adjustment. So life का other name क्या है? Adjustment. As a member of society, we make a lot of adjustment every day. Adjustment is usually a two-way process. The usual relationship with whom we try to adjust for a happy and comfortable living are as follows. So basically, what does it say is that हमें जो है एडजस्टमेंट किन किन के बीच में करना चाहिए. हस्बैंड वाइफ, मतलब ये सारे रिलेशनशिप्स हैं जिसमें हमें एडजस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि हम और पीसफुली और हारमोनियसली रह सकें. सो हस्बैंड वाइफ, पेरेंट चाइल्ड, ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड चिल्ड्रन, ब्रदर सिस्टर, सिबलिंग्स, कजिन्स, रिलेटिव्स, लैंडलॉर्ड टेनेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आप एक बार ही रीड थ्रू कर लें प्रोसेस मींस लिस्ट. Sorry. So there is no golden rule of adjustment skills. Okay, कोई golden rule नहीं है. Every individual is unique and so is her behavior pattern. But there are ways of proper behavior which leads to good adjustment. So since studying the adjustment skills on the basis of relationship would be quite time consuming, we have classified all the human beings into two broad categories on the basis of sex, such as male man और female women. So adjustment को हम पढ़ने के लिए, adjustment skills को पढ़ने के लिए हमने basically society को two main groups में divide कर दिया है, male and female में. ठीक है, वरना complex हो जाता पढ़ना इस पूरी adjustment की चीज को. So that's why criteria for the process of adjustment. तो adjustment करने के लिए क्या criteria है, हमें कैसे मतलब adjustment करना चाहिए. As responsibility, a well-adjusted individual has required maturity to undertake responsibility and can understand his own feelings. Sense of security, integration, ego development. ठीक है, so ये सब criteria हैं for the process of adjustment. Curiosity and spontaneity. ठीक है, ये सब क्राइटेरिया हैं, एक बार इनको आप रीड भी कर लें. Pull factors of the adjustment. That means
जो factors that pull us from making adjustment in life, जैसे aggression, so it leads to problems in social adjustment. Aggression is behavior that results in harm to another person. So aggression is a matter of value judgment, and aggressive behavior differs from to community. It's a way of expressing frustration and usually ends in violence, which is not a good value to be cherished. The small acts of aggression results in bigger problems of adjustment. So adjustment के बीच में aggression आ सकता है, anger आ सकता है, एग्रेशन एंगर थोड़े से सिमिलर ही है, एंड आपका फियर आ सकता है। ठीक है, और एक अरिस्टोटले जी हैं, उनने एक बहुत अच्छी बात कही है, तो वो भी आप लिख सकते हैं कहीं भी एंगर से रिलेटेड। Aristotle says that anyone can become angry, that is easy, but to be angry with the right person, to the right degree, to the at the right time, for the right purpose, in the right way is not easy. Okay, सो अरिस्टोटले जी ने ये कहा है। We know that aggression and anger are not acceptable forms of behavior and it will lead to negative adjustment. Fear, we tend to quickly adjust if we sense fear. Threat induced fear, and fear has been used by some people to get other people to comply. सो ये सब आप लिख सकते हैं फियर के बारे में। ऐसे एडजस्टमेंट से डायरेक्ट रिलेशन इनने नहीं बताया है, इनने बस मेंशन कर दिए हैं एग्रेशन एंगर फियर एडजस्टमेंट के नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं, पुल फैक्टर्स हैं। सो आप ये समझा सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। अब पुल फैक्टर्स है तो पुश फैक्टर्स उसके अपोजिट हो गए जो सपोर्ट करेंगे एडजस्टमेंट को। सो बेसिकली एम्पथी, एम्पथी ठीक है, हमें हेल्प करेगी। एम्पथी इस फ्रेज से हम डिफाइन कर सकते हैं टेक्स वन टू नो वन। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। सिंपैथी, एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस होता है। एम्पैथी मतलब हम भी फील कर पा रहे हैं जो उसके साथ हुआ है, सिंपैथी हम बस शो कर रहे हैं, हम फील नहीं कर पा रहे उसके साथ जो हुआ है। ह्यूमर, ह्यूमर की वजह से भी हम अच्छा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प, हेल्प से भी। सो ये सब चीजें पुश फैक्टर्स है एडजस्टमेंट की। सो अल्ट्रुइज्म मतलब इज अ हेल्पफुल एक्ट फॉर विच नथिंग इज एक्सपेक्टेड इन रिटर्न। सो ये भी आप लिख सकते हैं इसमें। अल्ट्रुइज्म मतलब एक ऐसा है जिसमें कि आप सामने वाले को कुछ देते हैं बट आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये जैसे गिल्ट है, ओबीडियंस। सो लेट्स रीड। In many instances, we tend to help those who have helped us in our need. ये तो है, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि हमें जिसने हेल्प किया हम उसे हेल्प करते हैं। This way we perform our responsibility by fulfilling our social obligation. Such kind of help is called the reciprocal help. मतलब कि किसी ने हमारी हेल्प करी, हमने उसके रिटर्न में हेल्प करी, इसे रेसिप्रोकल हेल्प कहेंगे। In emergencies, helping requires quick and decisive action, and the one who hesitates is lost. Do we think on the consequences of help? A warm glow of success can make you a more helping person. How about help extended by men to women and vice versa? So chivalry, I don't know how to pronounce that. Chivalry, chivalry is dead or alive in our country. So यहाँ पे help की बात करी गई है। और हेल्पिंग से हम ऑफ कोर्स एडजस्टमेंट और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि शिवालरी डेड है या लाइव, मतलब कि मैन जो है वुमेन को हेल्प कर रहे हैं, क्या ये अब खत्म हो चुका है या नहीं। ठीक है, शिवालरी का मतलब होता है ऑनरेबल और पोलाइट वे ऑफ बिहेविंग स्पेशली बाय मैन टुवर्ड वुमेन। ठीक है, तो गिल्ट। सो गिल्ट, ऑन नंबर ऑफ ओकेजन्स वी फील गिल्टी बिकॉज ऑफ आवर बिहेवियर। द फीलिंग ऑफ गिल्ट विल मेक अ पर्सन मॉडिफाई हिज बिहेवियर्स एंड देयरबाय मेक सो मैनी एडजस्टमेंट। ठीक है, ओबीडियंस लीड्स टू एडजस्टमेंट इन मैनी सिचुएशंस, और these are with some useful tips for adjustment. Relax,
Mind your language, count backward, pinch yourself, road rage. ठीक है, ये सब आप एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से करने के लिए यूज अ पंचिंग बैग, ये सब एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से करने के लिए टिप्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। So, an adjustment disorder is defined as an emotional or behavioral reaction to an identifiable stressful event or change in personal life that is considered maladaptive or somehow not an expected healthy response to the event or change. तो मतलब कि ऐसा इमोशनल और बिहेवियर रिएक्शन हम किसी सिचुएशन को कर सके जो हमारे साथ पहले भी हो चुकी है, और change in person's life that is considered maladaptive or somehow not expected healthy response to the event or change. So मतलब कि किसी पर्सन के साथ कुछ बुरा हुआ है पहला, तो वैसे ही सिचुएशन को देखकर मतलब बहुत रिएक्शन दे रहा है विच इज नॉट इमोशनल रिएक्शन या बिहेवियर रिएक्शन विच इज नॉट हेल्दी। सो इसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कहते हैं कि वो चेंज नहीं हो पाया है, दैट्स व्हाई अ डिसऑर्डर अकर्स। So adjustment disorders occurs at all age. However, it is generally agreed that characteristics of disorder are different in children and adolescents than they are in adults. शॉर्ट पीरियड के लिए ही होता है, ठीक है। ये सब जो है सिम्टम्स हैं ऑफ द एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के। रेमेडी क्या है? इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, फैमिली थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म होते हैं ये, तो उसके लिए आप ये सब थेरेपीज और साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। मैन विमेन एंड वैल्यूज, ठीक है। सो अब क्या है, we have to we have preferred to talk on values displayed by men and women as they display different values towards each other. Men and women together form a family, many families join together to form a group, several groups make a community, communities make society, society make nation. Thus two separate individuals Adam and Eve बोल सकते हैं हम, मतलब मैन एंड वुमेन, उनने ही पूरे सोसाइटी को बनाया है, ठीक है। सो ये देखो, ये मेल शोवानिस्ट कहते हैं कि जो मैन है वो सुपीरियर है टू वीमेन से। आन जमीमा जो है वो उनके लिए यूज करा जाता है, जो ब्लैक वुमेन है जो बहुत ही इनोसेंट सर्वेंट है, ऐसे ऐसे वुमेन को के लिए आन जमीमा यूज करा जाता है। और इसके अपोजिट अंकल टॉम जो है वो ब्लैक मैन के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट some stereotypes states for male and females बताए गए हैं कि मैन वुमेन एंड वैल्यूज। सो मैस्कुलिन ट्रेट्स ये सब होती है, एग्रेसिव, एम्बिशियस, एनालिटिकल, डोमिनेंट, डिसीजन मेकर, मैस्कुलाइन। सो ये सारी जो होती है ये मैस्कुलाइन ट्रेट्स होती है। फेमिनाइन ट्रेट्स होती है चीयरफुल, चाइल्ड लाइक, कंपैशनेट, जेंटल, शाय, सॉफ्ट स्पोकन। तो ज्यादातर जो फीमेल्स होती हैं वो ये सारी जो ट्रेट्स हैं वो शो करती है, ऐसा स्टीरियोटाइप है, ऐसा माना जाता है, जरूरी नहीं है कि यही हो, ठीक है। और ट्रीट सो हमने पर ये सब ठीक है, ये सब चीजें हमने देखी है सोसाइटी में, थोड़े से स्टीरियोटाइप है मैन और वुमेन के रोल्स को देख रिलेटेड मीन्स रोल्स को देखकर। सो ठीक है, सो ट्रीट अदर्स इन द मैनर यू वांट टू बी ट्रीटेड बाय देम, दूसरों को वैसा ही ट्रीट करो जैसे कि खुद तुम ट्रीट होना चाहते हो। तो लास्ट, हमें नहीं देखना चाहिए कि क्या मैन क्या वुमेन, हमें बस इस लाइन को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है।
maladjustment and values. So ये in this section let us study the typical features of maladjusted people. मतलब कि जो माल एडजस्टेड है, माल मतलब बैड होता है, बैडली एडजस्टेड है मतलब उनकी क्लोथिंग ये सब है, क्लीनलीनेस खराब है, अपीयरेंस बेकार है, फिजिकल पोस्चर सही नहीं है, वर्बल बिहेवियर सही नहीं है, सोशल बिहेवियर्स ऑकवर्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें माल एडजस्टेड पीपल की है। ठीक है, स्ट्रेटजीज टू हेल्प माल एडजस्टेड चिल्ड्रन। सो ये स्ट्रेटजीज जो हैं वो आप पढ़ लें एक बार, इतना कुछ इसमें मेरे को समझाने लायक नजर नहीं आया। ठीक है, और इसके बाद ये है लेसन्स ऑन लाइफ, ये भी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली कुछ पूछा नहीं जाता है। सो आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ आया होगा। इजी सा चैप्टर था एडजस्टमेंट पे, ह्यूमन एडजस्टमेंट पे। हमने देखा कि एडजस्टमेंट क्या होता है, एडजस्टमेंट नेगेटिव पॉजिटिव कैसा होता है, मैन एंड वुमेन कैसे एडजस्टमेंट अलग तरीके से करते हैं, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।